प्रिंसिपल होने की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? सबसे पहले ये एहसास करना कि आप खुद एक बच्चा हैं, हाँ, एक टीचर हैं, एक हाँ, पेरेंट है. यू हैव टू अंडरस्टैंड द इमोशंस ऑफ दीज थ्री फैक्टर्स बिफोर you think you are the principal. ओके, And then comes another role. You are the intermediary between staff and the management. So you have to understand the management's aspirations. What is their vision for the school? Understand their vision and then add on to it or discuss with them in case you want something else to be added to their vision. Likewise, you understand the parental aspirations. What do the children want? Children sometimes do not even know all the talents. So you provide opportunities for them to discover new potential, let them create it, and then be with them in the journey. And please teach everybody. Let your children overhear the good things that you can say about them. Don't criticize them ever. And if the children grow with this kind of self-acceptance that we are whatever we are, our parents consider us good. They don't judge us by marks. yes, They don't judge us by talent. If this child dances very well, why am I not such a good dancer? Whatever I do, they are ready to accept it. With my flaws, with my talents, with no talent also, in my own eyes or parents' eyes, but they love me unconditionally and they don't judge me for that. And I've seen so many children who are sometimes in the back of a stage, later in life take the front stage and do it so well. Yes. So education or being a principal is about believing in each child. okay, great, great. That is all. That's all. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू येट अनदर एपिसोड ऑफ बियॉन्ड रियलिटी विद भारत सदाना। और आज का एपिसोड बहुत पावरफुल होने वाला है। आज मैं मिलने वाला हूं मिस नीता अरोरा मैम से, जो एक्स प्रिंसिपल एंड डायरेक्टर हैं SVIS द्वारका सेक्टर 18। आज हम इनसे सीखेंगे पेरेंटिंग टिप्स, एजुकेशन ट्रेंड्स कैसे चेंज हो रहे हैं एंड कैसे दे आर प्रिपेयरिंग फॉर फ्यूचर जनरेशन। आइए मिलते हैं मैम से। मैम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? It's an honor, Mr. Bharat. थैंक यू मैम। थैंक्स। मैम, आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? Like all other children, ओके, was the middle sibling, and like all children have dreams. Some children dream of becoming something when they grow up. When I was 10 years old, I had the dream of becoming a school principal. ग्रेट। I loved my teachers. I loved the process of schooling. I loved going to school. And in fact, since I was the middle child, you can understand my elder sister was going to school and I was not yet going, and she was just 2 years elder to me. She used to cry going to school, and here I was asking, Father, please take me to. And so the school always helped me understand myself, discover my potential, create new potential. So I thought, if I become a principal, I'll do this. And when I was in grade 8, I started a club called Rose Club with all the children in my community. And we used to meet almost on daily basis, and then we used to hold an annual function. So if you see a good function in my school, you will say that Rose Club helped me. थैंक्स मैम। We learned organization. Yes. We learned co-curricular activities, cultural programs, also learned finance. Because when we used to those function on a rooftop, we had to arrange money for the guests so that we could give them some Coke or maybe give them refreshment. We used to buy some items. So those small kids, just 10 to 15 years old, would organize how much can we pull in, how much do we charge for our shows. We used to have ticketed entry. Great. But we will never spend that money on ourselves. The ticketed entry money would go back to the guests in the form of refreshments for them. But we wanted them to know that we are organizing. We didn't have furniture, so everybody would bring six chairs from their homes. And believe me, we learned everything, like how to raise a curtain, how to draw a curtain, where do we change our costumes in case so huge preparation would go as kids. So nowadays kids don't do all this. Yes. So I mean, we used to do even Ramleelas with cousins. And all those Indian mythological that we read, even portrayed or watched, helped us understand Indian culture. So when I became a student in senior classes, I realized that when I came to grade 9, there was a sudden dip. Okay. I thought physics and chemistry were tougher.
In our days, we never had tuitions till 8th. I had not even have to study much. School में पढ़ लिया सारी जिंदगी याद रहा. Exams were like a cakewalk. Ninth, I realized for the first time because I had that typhoid just before my first unit test. And I had a physics test to give right after recovery from typhoid and malaria. And I went to school, and that day my physics teacher was taking a class test. I hadn't even studied the chapter. I had been a very good student, reasonably good, I would say. So I never had to depend on any help. I never cheated. I had been a very honest child. My father drilled this into us to just be as honest as possible. That was the first time and only time when I asked a friend, I don't know anything, how do I attempt this paper? I didn't have the common sense to tell my teacher, can I miss the paper? No. Because I had not been coming. Yes. I didn't do that. She said, just don't worry, just see from my answer sheet. Okay. And that was the only time I probably took her help. And when the marks came, she got 6 and I got 6 and I felt so good. Why? Because there was one question which she didn't know, which I answered from general knowledge. Okay. Some question on plasma, what is plasma? And then I go out and said, ma'am, I don't deserve these marks. She's the one who deserves those 6 marks. I only deserve that half mark. So that's parenting tips or I became an honest child. I would always take care of my studies. Ladies and gentlemen watching me, new parents, please do not teach your child shortcuts. Yes. If I am able to work hard and reach a certain milestone, fulfill my dreams, it is because of that honesty that my father ingrained in me. He would, every time I would write an exam in 3, 4, 5, any class for that matter, for me to get it from my father that done well, he would make me solve the paper again. He would not ask me to write it, he will discuss each question with me. So my real exam was telling my father what did I do in the paper. Yes. And I was not bothered. My father would say, done well, I know I'll get good marks. Unlike many other parents who said, good paper ho gaya, bhul ja, next paper ki tayari kar. My father said, no, learn from what you have done. Yes. Revise in case you did not do anything right in that exam. And I still remember any paper, my father would come in the evening and ask all of us, my brothers and me, to do it. My sister would just run away, do something else. My brother would, and I would sit with my question paper, Papa pehle mein. और मुझे मेरी टीचर कहती थी, why are you writing answers in the maths exam? I said, this is for my father. He would ask me what answers did I get, and then I have to show him how did I get those answers. So please allow me to write these answers there in the questions. She said, all right. And this was grade 3, 4, 5. Till 2, no parent bothered. And then as I grew, he stopped getting my answer sheet checked, but the habit persisted. I would write an exam, come back, open my books again to see what I have done. Did I answer correctly or did I make a mistake? If I made a mistake, I would make it my, determined action that I have to learn whatever I made mistakes, whatever mistakes I made in paper. Consequently, I continued to top in classes. But it was all because of that training that my father gave me. And a lot of people say, forget the past. I would say, no. Learn from your mistakes of the past. Yes. So even that past was just 4 hours old. Even from there, you learn. And if you can reflect back, and once you've done your learning and you've moved on, there's no need to go back. Great. Believe me, that would not only help me become a better student, but also taught me to reflect on other things. Say, for example, if I had said something to someone which I shouldn't have said, I would reflect back, even after growing up. And I have no problem in going and say sorry after 2 days or 3 days. Today I told one gentleman, you said something to me and I reacted. Let's close this memory by saying sorry to each other. So there is no harm in saying sorry. It's definitely. You can heal yourself, you can heal other persons. Yes. Whenever you realize you made a mistake, please go and say sorry to that person. And so many times you'll find that you feel angry with yourself for reacting in a certain way without meaning to hurt anyone. Yes. If you have made a mistake and feeling guilty, excuse yourself too. Yes. It's very important. Very, very important to have peace of mind, because otherwise children nowadays are so reactive, they don't respond. They just react. Yes. You must have seen these kids are entitled to everything in life because the parents have brought them like this. Beta jo chahiye dilwa dunga. Unko na sunna hi nahi pasand. The first time they hear a no could be from a teacher, could be from a sibling, could be from a friend in school, or could also be a mother or father. Yes. Or a relative.
So this child reacts. This child doesn't know how to hear a no. Nobody has taught him no is also okay for you. डांट पड़ती है तो अच्छा ही है, बुराई नहीं है. हाँ जी. जिस बच्चे को डांट का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, हाँ. पहली बार उसको डांट पड़ी या पहली बार ना सुना तो he reacts in a certain way which is not right. He has not been taught how to manage your emotions. And वही पेरेंट जो उसको बहुत प्यार से पाल रहा है वो सहन कर रहा है, क्योंकि हम तो न्यू एज पेरेंट है, मिलेनियल्स. Yes. हम अपने बच्चों को डांट के नहीं बड़ा करेंगे. हमारे माँ बाप ने बहुत गलतियां की हैं, हाँ. हम तो सुधारेंगे अपने आप को. So they do not do what their parents had been doing. So they allow this child. There are others who understand psychology and they will sit with their child and explain, but half of them do not do that. And this leads into a lot of problems with the child for emotional adjustment with other beings. Yes. When he goes to a school, sometimes he has problems with his friends in the class or even with the teacher. What does he do? He goes home, tells, मेरे नंबर इसलिए नहीं आए, मेरा मूड ऑफ था, मैम ने मुझे ना 2 मिनट पहले ही डांटा था, so I just couldn't do well in this examination. Mama, please go and tell my teachers not to be rude to me. And mama, instead of telling कि जो गलती होगी उसको सुधारते हैं, दोबारा पढ़ लेते हैं उस चैप्टर को, they'll come to school the very next day, send a mail, this happened in the class, this boy misbehaved, the teacher scolded my child instead and spoiled the entire paper. And the child has got a scapegoat. नहीं पढ़ूंगा तो किसी को ब्लेम कर दूंगा. Yes. और पेरेंट्स को अपने बच्चों को दिखाना है कि हम अपने माँ बाप से बेहतर हैं, हम तुम पे पूरा फेथ रखते हैं, हम तुम्हारे दोस्त हैं, केयर करते हैं, हम तुम्हारे दोस्त हैं, दोस्तों से भी बड़े दोस्त हैं. With what happens after that? Now the child knows my parents can be manipulated. Yes. My teacher can be manipulated. The school, the system can be manipulated. He becomes a bigger psychologist than any one of us. And he starts manipulating. The child is supposed to be innocent. The child is supposed to be honest, transparent. Now can manipulate adults. And this continues. It goes in professional relationship, it goes in personal relationship, and hence you see more instances of divorces, lack of faith. And in office spaces also, sometimes the bosses say, नए बंदे को काम सारा आता है लेकिन कितना बदतमीज है. हाँ जी. And they cannot adjust with a rude employee. Yes. Because they also haven't been taught बिल्कुल. how to handle this rude employee. Yes. I mean, you can still handle. As I said, all of us can just go back and past and heal it. Yes. You don't have to go to a counselor to tell you this. What do the counselors do? They also tell you, बताओ बचपन में क्या हुआ था. Go back and think. Deep sleep में डाल के सोचो. What is hurting you? So ultimately, they are also trying to tell you, face this. This happened because you has this trauma. Half of the counselors, I've realized, make them feel anti against their own parents. हाँ जी. तुम्हारे साथ ये बेटा इसलिए हो रहा है इस उम्र में क्योंकि तुमको बचपन में तुम्हारे को ऐसे पाला गया था. Good Lord, एक और excuse दे दी उसको for his problems. Now you go blame your parents for this. And the child holds it in the heart. Child means they're young adult. Why should we blame anybody else for the situation that we are in? Yes. We are as responsible than anybody else. And in fact, such parents always loved us. Whatever they did, right or wrong now in hindsight, it was all because they loved us unconditionally. If the children just realize this, मेरे माँ बाप मुझसे ज़्यादा दुनिया में किसी चीज़ को प्यार नहीं करते. If they are being angry with me, they are doing it because they wish my future to be better, Yes. my present to be happier, and they want me to understand other people's emotions as well. So the parents have to undergo a very much change in the thinking process. Sometimes it is okay to tell your child this is wrong. This is wrong. Sometimes it is okay to tell, even if you can afford, this is not the right age for you to have this gadget. Yes. मैम आप प्रिंसिपल रह चुके हैं. प्रिंसिपल होने की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? सबसे पहले ये एहसास करना कि आप खुद एक बच्चा हैं, एक टीचर हैं, एक पेरेंट है. You have to understand the emotions of these 3 factors before you think you are the principal. Okay. And then comes another role. You are the intermediary between staff and the management. So you have to understand the management's aspirations. What is the vision for the school? Understand their vision and then add on to it or discuss with them in case you want something else to be added to their vision. Likewise, you understand the parental aspirations. What do the children want? Children sometimes do not even know all the talents. So you provide opportunities for them to discover new potential, let them create it, and then be with them in their journey. And please teach everybody. Let your children overhear the good things that you can say about them. Yes. Don't criticize them in public ever. And if the children grow with this kind of self-acceptance that we are whatever we are, our parents consider us good. They don't judge us by marks. Yes. They don't judge us by talent. If this child dances very well, why am I not such a good dancer? Whatever I do, they are ready to accept it. With my flaws, with my
talents with no talent also in my own eyes or parents' eyes, but they love me unconditionally and they don't judge me for that. And I've seen so many children who are sometimes in the back of a stage, later in life take the front stage and do it so well. Yes. So education or being a principal is about believing in each child. Okay, great. That is all. That's all. Yes. मैम, आज के जमाने की एजुकेशन और 10 साल पहले की एजुकेशन में क्या फर्क दिखता है आपको? सच बताऊं, the basic purpose of education is still the same. A lot of people feel education is about giving them technological advancement, giving them those tools that will help them become better in life. Which education are we talking about? Are we talking about elementary education or college education right now? If you talk about elementary education, then it is about giving a belief in self to the child, giving him confidence that he can learn anything. Learning is not beyond him. Nobody should tell this child to ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता. I've had cases जहाँ पेरेंट्स बोल देते थे तेरे बाप को नहीं समझ में आया मैथ्स तुझे क्यों आएगा, या तेरे स्कूल का मैथ्स तो बहुत ही टफ है. जब ऐसी बात बोलेंगे कि बच्चे को डरा दे कि पढ़ाई टफ होती है तो बच्चा नहीं पढ़ पाएगा. बच्चे को सपोजिंग 4 साल का बच्चा, उसको एक होमवर्क आया, एक फुल पेज का आ गया जिसमें 10-12 उसको अक्षर लिखने हैं, और उसको देखती मम्मी कहती हाय तो बेचारा छोटू सा बच्चा कैसे करेगा. बच्चा कहेगा नहीं कर सकता, मम्मी नहीं होगा मेरे से, कंप्लीट ही नहीं होगा. लेकिन अगर माँ उसको बोले ओनली दिस मच और ये तो जल्दी से हो जाएगा, इसके बाद हम खेलने जाएंगे, तो ये मोटिवेशन होगी, बच्चे ने कर लिया. एक कई बार पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चे से कुछ गलती हो गई, तोड़ दिया, किसने तोड़ा, सारे बच्चों को कैसे लगे, मेरी भी लगती थी, मेरी बहन की भी लगती थी, भाई की भी लगती थी जब कुछ टूटता था. समटाइम्स वी किड्स हैडंट डन एनीथिंग, हम तीनों को नहीं पता किसने तोड़ा, और पापा कह रहे जो सच बोल देगा तो मैं छोड़ दूंगा तुम तीनों को. मेरी बहन मेरे को देख रही, मैं उसको देख रही, मेरा भाई देख रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा, पापा का गुस्सा बढ़ना शुरू हो गया, यू नॉट टेलिंग मी, सच नहीं बोल रहे तुम लोग. तो मैंने एक बार जो सच में बोला, पापा मेरे से टूटा. पापा ने कहा जाओ सारे खेलने जाओ. बस इतना सुनना है कि ओन अप कर लो. मैंने तो बाद में जाके पापा को बोला, पापा सच बताऊं आज आपने मेरे से झूठ बुलवाया. आपका गुस्सा बढ़ता देख के मैंने झूठ बोल दिया, जबकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि इसकी वजह से बात खत्म हो गई. आप कभी कभी मान भी लिया करो, जब तीनों बच्चे कह रहे हैं कि उन्होंने गलती नहीं करी तो कोई और भी कारण हो सकता है उस नुकसान का या उस दुर्घटना का. सो द पेरेंट्स आल्सो हैव टू अंडरस्टैंड कि बच्चे अगर कह रहे हैं उन्होंने गलती नहीं की, जब तक बस प्रूफ ना हो आप बच्चों को झूठा मत ठहराइए. और ना ही ये मानिए कि बच्चे ने गलती करी ही होगी, ये पहले से नहीं करी होगी दो नहीं. जैसे स्कूल ने कहा इस बच्चे ने आज गाली दे नहीं सकता मेरा बच्चा, भाई इसके परिवार में कोई गाली नहीं देता, डैश ऐड कर दिया. भूल गए कि मुंह से खुद स्लिप हुआ है. और आपका प्रश्न था कि एजुकेशन क्या है. अब ये एजुकेशन जो है, सबसे पहले तो बच्चे को लाइफ लॉन्ग लर्नर बनने की प्रेरणा दे. बिल्कुल. मैं हमेशा जब क्लास में जाती हूँ, 9th में अगर बायोलॉजी पढ़ा रही हूँ तो बोलती बेटा जितनी नॉलेज है वो मुझे नहीं आती, और जितनी मुझे आती है वो मैं इस लाइफ टाइम में तुम्हें दे नहीं सकती, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 6 घंटे हैं और उसमें मुझे सिर्फ 40 मिनट का एक पीरियड मिलता है, वो भी रोज नहीं मिलता, बायोलॉजी में 3 ही मिलते हैं. तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं एक विंडो खोल रही हूँ जिसमें हम दोनों चलते हैं. मैं थोड़ी दूर चलूंगी तुम्हारे साथ, उसमें से जितना घूमना है घूमो. वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन इज एक्सपैंडिंग. तुम्हारी मर्जी तुम्हें कितना सीखना है. स्कूल या कॉलेज तुमको एक लिमिटेड सिस्टम ऑफ नॉलेज देंगे, दे विल नॉट गिव यू एजुकेशन. हम एजुकेशन क्या समझते हैं, क्या पढ़ाई जो किताबों में लिखी, किताबें कितने सालों पहले लिखी गई थी, दे नॉट कीपिंग पेस विद टाइम्स. तो 10 साल पहले हमें ये बात सिखा दी गई थी कि एजुकेशन इज समथिंग दैट लास्ट्स विद यू इवन आफ्टर एग्जाम्स. एजुकेशन इज अ लाइफ लॉन्ग स्किल. उनको जीवन जीने की कला है एजुकेशन, ना कि एक एग्जाम पास करना. अनफॉर्चुनेटली करंट टाइम में सीबीएसई 10th एंड 12th में कितने नंबर आएंगे उसकी तैयारी नर्सरी से शुरू हो जाएगी. आई हैव हर्ड लॉट ऑफ पेरेंट्स सेइंग या टीचर्स, इसको ये मैथ्स नहीं आता, आगे 10वीं में फेल होगा क्या? अरे भैया अभी नहीं आता, जिस दिन ये बड़ा हो जाएगा इसका दिमाग चलने लग जाएगा. अभी इसको खेलने में इंटरेस्ट है, इसको ये कोई नई चीज स्किल सीख रहा है, या इसको आपने क्रिकेट में भी डाला हुआ है, आपने इसको डांसिंग में भी डाला हुआ है, उसको उसमें मजा आ रहा है, जिसे मैथ्स में मजा आने लगेगा वो भी कर ले. हो सकता है हमने डांट के पढ़ाया, समझाया ना हो, क्या बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाया ना, सुबह से ट्यूशन भेज देते हैं हम. क्लास स्कूल से आती ट्यूशन टीचर का काम क्या, यही बताना तेरे को ये नहीं आता, तेरे को ये नहीं आता, तेरे को ये नहीं आता, जब तक मेरे से नहीं पढ़ेगा तो पास नहीं होगा. वो यही करती हैं.
जितने माँ बाप, मैं आपसे इस माध्यम के थ्रू कहना चाहूंगी, जितने माँ बाप ये सोचते हैं कि कोई और आपका काम कर लेगा पढ़ाने का, या बच्चों को खुद पढ़ने के लिए प्रेरणा ना दे के एक स्पून फीडिंग वाली बात, वो बच्चे ट्यूशन जरूर चले जाएंगे, हो सकता है कुछ ट्यूशन वाले बच्चों के नंबर भी ज्यादा आ जाए, लेकिन वो क्लास में मस्ती करेंगे फिर, क्योंकि कुछ तो क्लास में पढ़ेंगे ही नहीं, क्योंकि शाम को भी पढ़ना है वही चीज, और कुछ क्लास में नहीं पढ़ेंगे। एक 1/3 ग्रुप होता है जो ट्यूशन टीचर से जो सीख कर आता है उसको क्लास में अप्लाई करता है, पर वो ट्यूशन टीचर को भी एक हाई लेवल की होना चाहिए। आई रिमेम्बर मेरी कभी ट्यूशन नहीं लगी, एक बार मेरे भाई की लगी थी, तो मुझे साथ भेजा गया उस ट्यूशन में ताकि भाई को मैं साथ ले जाऊं और ले आऊं, मेरे से छोटा भाई। जब मैं गई ट्यूशन टीचर के पास तो उसने बोला तुम क्यों आई हो, तुमको तो आता है सब। उनकी मम्मी ने बोला है कि मुझे आना है, तो मैं आ गई। माँ की बात नहीं काटेंगे। वो क्या करते थे, मेरे को सब बच्चों को पढ़ाने के लिए लगा देते थे। 2 महीने बाद मेरी मम्मी ने बोला अच्छा नीता को रहने देते, कहती नहीं प्लीज इसको मत हटाना, ये मेरी क्लास में मेरे से ज्यादा अच्छा पढ़ाती है। तो प्रिंसिपल बनने की ट्रेनिंग तब से स्टार्ट हो गई। ग्रेट मैम। मैम जब भी लोग घर लेने की सोचते हैं, इन्वेस्टमेंट लेने की सोचते हैं, तो सबसे पहला सवाल पूछते हैं कि आसपास में कोई अच्छा स्कूल है या नहीं। तो क्या आपने देखा है कि एक अच्छा स्कूल होना नेबरहुड में इट्स अटमोस्ट नेसेसरी राइट नाउ? घर खरीदता कौन है? जिसके पास या आप सेविंग हो, यस, तो वो माँ बाप हो गए समझ लीजिए। हाँ, जब वो सेविंग कर ले रहे हैं, तो अगर उन्होंने सेविंग इतनी कर ली है, उनके बच्चे बड़े हो गए हैं, तो वो आने वाली जनरेशन के अपने बेटे को घर दे दे या बेटी को घर दे दे, तो नई जनरेशन के लिए ले रहे हैं, या एकदम से न्यू पेरेंट्स ले रहे हैं। यस, नॉट इवन पेरेंट्स, शादी हुई, बच्चों को लगा घर तो बनना ही चाहिए, एंड इफ दे आर ड्यूअल इनकम, जैसे आजकल है कि हस्बैंड वाइफ दोनों काम कर रहे हैं, या एक भी कर रहा है और उसको लगता है मुझे लोन मिल जाएगा तो मुझे टैक्स में भी बचेगा, किराए पे घर लेने की जगह मैं लोन लेके घर ले लेता हूँ, जो किराए में थोड़ा सा ऐड करेंगे तो किस्त चली जाएगी और मेरा किस्तों में घर बन जाएगा, जब तक मेरा बच्चा आएगा, बाद में तो मेरे खर्चे बढ़ जाएंगे बच्चे की पढ़ाई को लेकर। तो जो बच्चे बहुत जल्दी शुरू कर देते हैं अपने रियल एस्टेट के ड्रीम्स पूरे करने, सबसे समझदार होते हैं। तो वो बच्चा जो जॉब लगते ही सोच रहा है कि मैं घर ले लूँ और किस्त ले लूँ, वो 2 तरह से फायदा होता है। एक तो उसकी बहुत इनिशियल इन्वेस्टमेंट है जो सस्ती होगी, हाँ जी, अगर वो 10 साल बाद घर लेने की सोचेगा तो वो घर उससे दूर चला जाएगा, बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर पाएगा वो, जितना मर्जी भी कमाता हो, क्योंकि बहुत सारा तो टैक्स सरकार ले जाएगी ना। अगर बहुत हायर ब्रैकेट में है तो 1/3 तो डेफिनेटली जाएगा ही जाएगा। हाँ जी, आप जितनी मर्जी सेविंग कर लीजिए। हाँ जी, पर अगर आपने हाउसिंग लोन लिया हुआ है तो आपका टैक्स भी कम हो गया और आपकी एक फ्यूचर इन्वेस्टमेंट होगी। दैट हाउस इज एन इन्वेस्टमेंट एट द मोमेंट, यू आर सेविंग टैक्स बट यू आर इन्वेस्टिंग फॉर योर फ्यूचर। फिर इस बच्चे की शादी होती है, हाँ जी, और अब उसको पता है, क्योंकि ही इज अ फैमिली ओरिएंटेड मैन। जो घर वर बनाते हैं ना, ये फैमिली वाले बच्चे जो रहते हैं साधु संतों के जैसे, उनको तो घर बनाना ही नहीं है। हमने क्या जिम्मेदारी नहीं लेनी, शादी नहीं करनी, बच्चे नहीं करने, माँ बाप का ही घर में रहने की क्या जरूरत पड़ी अपना घर बनाने की। उनके माँ बाप सेव करते हैं उनके लिए, और ये जो अपना घर बनाते हैं उनको फैमिली चाहिए। हाँ जी, वो अच्छी लड़की से शादी भी करेंगे, बच्चों को पढ़ने का भी उनका एक सपना होता है, तो वो ऐसी जगह पे घर लेना पसंद करते हैं जिसमें रह सकें, ताकि उनको दोबारा किराए का घर ना लेना पड़े। हाँ जी, तो उसके लिए क्या चाहिए, उनको सेफ्टी चाहिए सबसे पहले, बिल्कुल, ट्रांसपोर्ट की एक्सेसिबिलिटी चाहिए, हाँ जी, और तीसरी चीज चाहिए सबसे बड़ी, वो है कि आसपास स्कूल हो, चौथी चीज चाहिए अस्पताल। हाँ जी, इन चारों को वो देखता है। अगर उसको लगता है ये रोड के पास है, मार्केट भी पास है, स्कूल भी है पास में, या अच्छे स्कूल विसिनिटी में है, और चौथी चीज हेल्थ फैसिलिटी है इस एरिया में, तो ये हमारे लिए ठीक है, और वो उसमें आंख बंद करके पहली डाउन पेमेंट कर देता है। अदरवाइज वो सोचता रहेगा इतनी दूर शहर से, इतनी दूर, चाहे मेरे को कंपनी ट्रांसपोर्ट भी मिल जाएगा, लेकिन मेरा जब बच्चा पैदा होगा तो वो शहर आएगा पढ़ने के लिए 2 घंटे की ड्राइव करके। पर अगर वो जो दूर एरिया है वहां पर बढ़िया सा स्कूल है, तो वो सोचेगा नहीं, वो सोचेगा हाँ बाद में सिटी इज गोइंग टू एक्सपैंड। यस, सो ये जो आज दिख रहा है 2 घंटे दूर ड्राइव पर, ये सिटी बन जाएगी। हाँ जी, और यहाँ पे स्कूल की बिल्डिंग बननी शुरू हो चुकी है, अस्पताल की भी बन रही है। दिस इज द राइट एरिया फॉर माय फ्यूचर। तो आपने देखा है कि लोग सिर्फ स्कूल के करीब आने के लिए रिलोकेट करते हैं कुछ? इतने सारे पेरेंट्स हैं जिन्होंने द्वारका में घर ही इसलिए है क्योंकि ब्रैग नहीं कर रहा हूं, श्री वेंकटेश्वर के लिए हाँ। कितने बच्चे दूर दूर से आते थे, माँ बाप को लगा ट्रैवल में टाइम लगता है, तो चलो द्वारका में फ्लैट ले लेते हैं, कहीं और लेना चलो द्वारका में ले लेते हैं। आई स्टिल रिमेम्बर देयर इज अ पेरेंट जिनका बिजनेस शिफ्ट हो गया नोएडा में, ओके, तो उनको अपना बच्चा निकाल के किसी नोएडा स्कूल लेके 3 महीने बाद वो आए, मैम प्लीज वापस ले लो, और हम द्वारका वाला घर बेच नहीं रहे, बिजनेस पापा ट्रैवल करेंगे, बच्चा यही पढ़ेगा,
क्योंकि बच्चा वहाँ खुश ही नहीं है दूसरे स्कूल में, रो रही है रोज मेरी बिटिया। आई हैव हैड सो मेनी केसेस जहाँ बच्चे ने वापस रीएडमिशन लिया है क्योंकि उनको स्कूल नहीं छोड़ा। बच्चे तो छोड़ी, मेरी टीचर्स वापस आती है ओके। किसी वजह से चले गई दूर। एक टीचर की शादी हुई, उसकी यमुना पार में ससुराल थी और उसे छोड़ दी जॉब क्योंकि सास ने बोला इतना टाइम लगता है, तुम कुछ भी नहीं कर पाती हो अपने लिए भी, ना बेटे का ध्यान रख पाती हो, ना घर का ना अपना, तो इतना लंबा ट्रैवल क्यों करती हो, छोड़ दो, आसपास यमुना पार्क के पास भी अच्छे स्कूल। शी वाज अ वेरी गुड टीचर, शी गॉट जॉब इन सम स्कूल बट शी डिडंट लाइक, शी सेड आई वुड रादर ट्रैवल देन वर्क इन अनदर स्कूल एंड शी केम बैक टू आवर स्कूल। रमनीक मैम थी एक ऐसे बहुत सारी टीचर्स वापस आई। मैम ये बहुत ही इंस्पायरिंग आपने बताया। ये स्कूल ऐसा क्या करता है कि हमेशा जो है टॉप रैंकिंग में रहता है और पेरेंट्स की फर्स्ट चॉइस रहता है? हम ना वो स्कूल नहीं है जो रैंक्स के पीछे भागते हैं, लेकिन फिर भी हम टॉप रैंक में आते हैं। जब आप कर्म करते हो ना तभी फल मिलता है। आप फल के पीछे भागे पहले, कर्म करने से पहले, तो फल आते आते भी रह जाता है। सो मी मैसेज है फॉर ऑल द अदर स्कूल ओनर्स, डोंट चेज रैंक्स, जस्ट ग्राउंड लेवल पे पहले अपने आप को उठाइए, काम करिए, बच्चों के साथ जुड़े रहिए। कोई ना कोई आपको देख रहा है, सुन रहा है। जो ऑडिटर्स आते हैं उनको भी समझ में आता है, वो सिर्फ आपका इंटरव्यू नहीं लेते, बिल्कुल, वो पेरेंट्स का फीडबैक लेते हैं, वो सारे स्टेक होल्डर्स से बात करते हैं। और अगर सिर्फ वो स्टेक होल्डर्स की रिपोर्ट ही अच्छी ना हो, बट इट इज ऑल्सो सपोर्टेड बाय एविडेंसेस। एविडेंस इन टर्म्स ऑफ आपके कितने एलुमनाई कहाँ पर हैं, आपके बच्चे अभी करंट एजुकेशन सीन में क्या अचीव कर रहे हैं, कितने इंडिपेंडेंट हैं, स्कूल की कल्चर कैसी है कि जहाँ बच्चों को मौका मिलता है खुद ऑर्गेनाइजर या लीडर बनने का, लीडरशिप ट्रेनिंग अगर स्कूल से हो रही है। तीसरी चीज, क्या बच्चों की इमोशनल हेल्थ पे काम किया जा रहा है, क्या बच्चों को लाइफ स्किल्स दी जा रही हैं, क्या बच्चों को खेलने की तरफ भी प्रोत्साहन दिया जाता है, और अगर वो खेल रहे हैं तो क्या उनके लिए कुछ कंसेशंस की जाती हैं, क्या अगर वो म्यूजिक, डांस, थिएटर, AI, कंप्यूटर रिलेटेड या एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जा रहे हैं तो स्कूल उनको किस तरह का बढ़ावा या सपोर्ट देता है। स्कूल में रीडिंग की कल्चर क्या है, सबसे बड़ी बात मैं सबसे कहूँगी कि USP जिसको बोलते हैं यूनिक, हमारा जो एक यूनिकनेस है वो है छोटी उम्र से जैसे ही बच्चा स्कूल आता है उसको पढ़ने की तरफ रुझान देना, रीडर बनाना। हम इससे पहले कि बच्चों को ABCD सिखाएं, उनको साइट रीडिंग सिखा देते हैं। 3 महीने हम बच्चों को पेंसिल नहीं देते जब बच्चा आता है, क्योंकि पेंसिल पकड़ा दो 3 साल के बच्चे को तो उसको लगेगा आई एम नॉट केपेबल, यस, देयर आर सो मेनी, आई कैन नॉट स्टार्ट राइटिंग, द चाइल्ड विल ग्रो विद अ नेगेटिव सेल्फ बिलीफ। लेकिन किताबें देखना, कहानियों की किताबें देखना, चित्र देख के कहानी समझने की कोशिश करना, ये तो बच्चों को आई मीन दिस इज देयर इन देयर साइके। ये मतलब जनरेशन की लर्निंग है जो बच्चों के अंदर है। हाँ जी, माँ बाप उनको घुमाते हैं, दिखाते हैं, जू ले जाते हैं, किताब में भी उसको वही कैरेक्टर दिख रहे हैं, वो समझने लगता है। और टीचर बोलते हैं लेट्स पुट आवर फिंगर एंड द टीचर रीड्स द स्टोरी। हर बच्चा स्कूल जाने से पहले 10-15 पोएम्स रटी होती है ना, बिल्कुल। इसका मतलब बच्चों की समझ और इंटेलिजेंस और मेमोरी में कोई कमी नहीं है, बिल्कुल। हर बच्चे को याद होती है वो लंबी लंबी कहानियां, इतनी इंग्लिश, हिंदी, सब तरह की पोएम्स, और कितनी कहानियां वो खुद बना लेते हैं। अब सिचुएशनल 2 साल के बाद 2 से 4 साल का बच्चा कहानी बोल सकता है, बना सकता है। He has become that kind of I would say thinker। तो अब ये बच्चे को हम यही चीज पहले जो उसकी इमेजिनेशन पावर है उसको डेवलप करते हैं। साथ में साइट रीडिंग में इस बच्चे ने एलिफेंट कहीं लिखा है और उसने फिंगर रखी, सामने एलिफेंट का चित्र भी बना हुआ है और कहानी चल रही है और डेमेट्राइज भी हो चुकी है कहानी, तो उसको कहानी का फ्लो भी पता है। अब इसकी फिंगर लगी एलिफेंट में, दिमाग क्या है, कैमरा। आपको नहीं लगता इसके कैमरे ने इमेज दिमाग में प्रिंट की होगी? बिल्कुल। उसको नहीं पता ये EL है, E है, पर ये छोटी छोटी इमेजेस प्रिंट होती रहती हैं। आई हैव डन सो मेनी एक्सपेरिमेंट्स। मैंने एक बार ब्लैकबोर्ड पे जाके 4 साल के बच्चों की क्लास में एनवायरनमेंट वर्ड लिख दिया और बोला बच्चों तुम लोग अब इसको देख लो, देखते रहो, बस कैमरे की तरह इसको स्टोर कर लो पीछे कहीं, और मैं इसको इरेज कर रही हूँ। और फिर जिसको जो कैमरे में हुआ था सेव, वो कॉपी पे लिखने की कोशिश करो। मेरी टीचर को कहोगी मैम सॉरी वी जस्ट ऑन 3 लेटर वर्ड्स और आपने इतना बड़ा वर्ड लिख दिया। ऐसा रिलैक्स, इट्स जस्ट एन एक्सपेरिमेंट, यू विल सी, यू विल बी सरप्राइज। हर बच्चे ने मोस्ट ऑफ द कॉन्सोनेंट सही प्लेस किए क्योंकि उनको लेटर आइडेंटिफिकेशन आ चुकी थी, लिखना आता था, 3 लेटर पे आ गए थे। एक आधी किसी की गलती हुई तो कहीं जहाँ आई लगना वो आई मिस हो गया या ओ मिस हो गया, बट बाई एंड लार्ज एंड सच अ बिग वर्ड। So I told the teachers, हम कर क्या रहे हैं, हमारे सिस्टम ऑफ एजुकेशन इज ऑल अबाउट रिपीटेड ड्रिलिंग। यस, पीटी नहीं करा रहे हम क्लास में कि भैया बस ड्रिल करते रहो पूरे पूरे नंबर आ रहे हैं क्लास टेस्ट में। Tell them they are bigger than what we are teaching, they can learn so much more।
यस। ये जो करिकुलम बना है, सिलेबस बना है, ये हर बच्चे के लिए बना है वो इस देश के जिसको स्कूल भी नसीब नहीं है, हाँ जी। जो बहुत गरीब है, जिसके घर में लाइट भी नहीं है शायद, इसलिए बहुत एवरेज सा हमने सिलेबस बनाया है। सब लोग कहते हैं इंडियन एजुकेशन फेल है। आई से नो, इट इज वेरी एवरेज। यस। चिल्ड्रन हु कम टू स्कूल्स लाइक आवर्स, जहाँ पे उनको ये कहा जाए कि कुछ भी तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं है और ये पढ़ाई तुम्हारे से कम ही है, तुम इससे ज्यादा कर सकते हो, हाँ जी, पोटेंशियल सब में होता है। तो वो बच्चा इस बिलीफ के साथ कुछ भी पढ़ जाएगा। बिल्कुल। पर ऐसा नहीं कि हम ढेर पढ़ा देते हैं कि नहीं बच्चे तो बहुत ज्यादा पढ़ लेते हैं। We keep it to their level क्योंकि that gives a space for so many activities जो असल में लाइफ स्किल्स सिखाती है। बिल्कुल मैम, ऑल इंडिया रैंकिंग में 8 आना इज नॉट अ स्मॉल थिंग। तो ये जो माइन्यूट डिटेल्स हैं जो आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ दैट। I believe it is not just details or minuteness of the details, it is about इतने सालों का एक्सपीरियंस एज अ पेरेंट, as a teacher, as a child myself, how did I like to learn? ये तीनों चीजों को जब हम साथ रख के अपने आप को स्कूल लीडर कहते हैं, तब जाके बात बनती है। बिल्कुल मैम, सही। मैम, नया सेशन स्टार्ट हो रहा है, अब पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए बेस्ट स्कूल कैसे सिलेक्ट करें? क्या 3 फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ह्यूमन फैक्टर। हाँ जी। क्या उस स्कूल का विजन क्या है? क्या उस स्कूल के बच्चे जब स्कूल से बाहर निकलते हैं तो किस तरह की भाषा यूज करते हैं? Yes. आपस में कैसे एक दूसरे को कहते जा रहे हैं? क्या वो बड़ों का सम्मान करते हुए दिखते हैं? अगर आप बाहर खड़े, किसी दिन जाके खड़े हो जाइए जिस स्कूल को आप सोच रहे अपने बच्चे को डालना है, सिर्फ वो जाते हुए बच्चों को देखिए पानी। दूसरा, आप उनकी वेबसाइट पे जाइए या उनका जो भी सोशल मीडिया अकाउंट है उस पे जाइए, उससे काफ़ी आइडिया होता है किस टाइप की एक्टिविटीज़ हो रही हैं उस स्कूल में। तो जो मर्जी वो प्रोस्पेक्टस में लिख लें कि हम तो सब चीज़ों पे जोर देते हैं, लेकिन अगर सोशल मीडिया पे ऐसा कुछ भी होता नहीं दिख रहा तो वो बड़बोल हो सकता है। हाँ जी। तीसरी चीज़, आप उस स्कूल के बच्चों को अंदर ये देखिए, जब हम सोशल मीडिया पे जाते हैं तो कितनी एक्टिविटीज़ आपको टीचर लेड लग रही हैं और कितनी एक्टिविटीज़ आपको स्टूडेंट लेड लग रही है। अगर स्टूडेंट लेड एक्टिविटीज़ जिसमें बच्चे सब चीज़ें नियंत्रण में रख रहे हैं और बच्चे ही ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, वो आपको दिखती है प्रचुर मात्रा में, तो इसका मतलब वो स्कूल बच्चों को सही ग्रूम कर रहा है। बिल्कुल सही कहा। ये इस तरह से मैंने कभी नहीं सोचा। यही फायदा होता है कि एक्सपीरियंस से बात करने का। सिर्फ स्कूल की रैंकिंग ही डिसीजन मेकिंग का पार्ट होना चाहिए या और भी फैक्टर्स मैटर करते हैं? अगर रैंकिंग अच्छी ऑडिटिंग एजेंसी की है जिसकी क्रेडिबिलिटी है मार्केट में, क्योंकि ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिनकी रैंकिंग में हमको 1 ना देके 4 दिया गया क्योंकि हमसे एक सर्टेन सम की उम्मीद लगाई गई थी। हमने कहा हम दे ही नहीं रहे, एक भी पैसा नहीं दे रहे, रैंकिंग देना ही नहीं हमें, फिर भी दी गई। क्यों दी गई? हमने कहा क्यों दे दी? बोले कि आपका नाम डालने से हमारी रैंकिंग दिखती है, हटा ही देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। सही चीज मैम, चाहे कहीं भी हो दिख जाती है। तो बहुत सारे लोग, इसलिए बहुतों को मैंने बोल दिया कि वी विल नॉट पे यू एनी मनी, यू वांट टू कीप दिस इन रैंकिंग, नॉट कीप, दैट्स योर प्रॉब्लम। पर दे वुड नॉट लीव अस आउट, दे कैन नॉट अफोर्ड। आपको लगता है आज के पेरेंट्स एकेडमिक्स को लेकर ज्यादा प्रेशर डालते हैं बच्चों पर? नहीं, ऐसा नहीं कहूँगी सभी पेरेंट्स डालते हैं। पेरेंट्स ट्राई टू हैव अ बैलेंस। अब प्रॉब्लम पता है क्या है? एकेडमिक्स से ज्यादा पेरेंट्स को लगता है जो कुछ मैंने अपनी जवानी में नहीं सीखा, बचपन में नहीं सीखा, मेरा बच्चा अभी सीख रहा है। पेरेंट उसका बच्चा टॉपर आके कह रहे मैम इसने क्लब में कंप्यूटर क्लब क्यों लिया है, टॉपर है, इसको तो वैसे ही आता है कंप्यूटर सब्जेक्ट में, इतना अच्छा है। मैंने कहा फिर आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ मेरा बच्चा गिटार ले। मैंने कहा शायद इसलिए कि आप गिटार सीखना चाहते थे और आपके पिताजी ने अलाउ नहीं किया था। कहते एग्जैक्टली, मैंने इतना कमा लिया है कि मेरे बच्चों को अब बहुत मेहनत करने की जिंदगी भर जरूरत नहीं पड़ेगी। आई वांट हिम टू हैव अ हॉबी। इट्स अ वेरी गुड थॉट, कोई कमी नहीं है इसके अंदर कि बच्चे को चाहते हैं कि एक इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखे। पर मैंने कहा फिर ऐसा करते हैं, बच्चे का भी मन जान लेते हैं। बिल्कुल, आप नहीं चाहते कंप्यूटर क्लब ले क्योंकि आप चाहते हैं कि वो भी कोई लाइट सब्जेक्ट ले या कुछ अच्छा सा क्लब का सब्जेक्ट ले। तो उस बच्चे से हमने बात की तो उसने मुझे बोला मुझे गिटार इसलिए नहीं लेना क्योंकि मेरे पापा कह रहे हैं। मैं सब्जेक्ट अपनी मर्जी का लेना चाहता हूँ, कंप्यूटर मैंने अपनी मर्जी से लिया था। अब पापा चाहते हैं कि मैं उनके पसंद कर लूँ तो चलिए मैं पापा की बात थोड़ी रख लेता हूँ, लेकिन दूसरा सब्जेक्ट मैं अपनी मर्जी का ही लूंगा, पापा को वो मानना पड़ेगा। ऐसे वो मेरी जिम्मेदारी होगी बनाने की। He just doesn't want to work, वो नॉन एकेडमिक सब्जेक्ट ले ले क्लब के लिए।
He said, मैम क्लब गिटार तो मैं कहीं भी सीख सकता हूँ ना, कभी भी सीख लूंगा, मैं सीख लूंगा, अभी मेरा मन नहीं है। उसको निकलना था मेडिकल एंट्रेंस में। तो उसने बोला, मैंने कहा ढूंढ ले, इतने सारे क्लब हैं। कहता आई टेक कुकिंग। I said I have no issues। उसके पापा ने कुकिंग लेगा मेरा बच्चा। उनके क्या बुरा, यही भी तो लाइफ स्किल है। बिल्कुल। कल को हॉस्टल में जाएगा तो सिर्फ मैगी खाएगा क्या? या कल को इसकी पोस्टिंग कहीं और हो जाती है जॉब में और इसकी शादी भी नहीं हुई है, जिस दिन सर्वेंट नहीं आया उस दिन कौन करेगा? जिस दिन आपके घर में सर्वेंट नहीं आया, बीबी बीमार है, तो कौन करता है काम? So there's nothing wrong. You don't have any daughters. You have only 2 sons. I would suggest if he wants to learn to make a few dishes, you should respect his decision. Please, इतनी उस उम्र के बच्चे पे अपनी इच्छाओं का बोझ मत डालिए। सब माँ बाप सुन ले प्लीज। हम बहुत सारे अपने अनफुलफिल्ड ड्रीम्स अपने बच्चों की तरफ से पूरा करवाना चाहते हैं। नो, लिसन टू देयर ड्रीम्स। प्रॉफिट में खलील गबराल की एक नॉवल है, छोटी सी बुक है, उसमें लिखते हैं प्रॉफिट में खलील गबराल, Your children come through you, but not for you. याद रखिए, they come for life's longing for itself. तो इन बच्चों को अपनी उड़ान भरने। ग्रेट मैम। मैम आजकल हम देखते हैं कि बच्चे बहुत छोटी एज से ही गैजेट्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, या हम ही एज अ पेरेंट्स पुश कर देते हैं उन्हें? बहुत सेंसिटिव क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन बिल्कुल सही है आज के जमाने, ना ही सेंसिटिव है, दिस इज अ बेसिक रियलिटी। बच्चा हर चमकती हुई चीज की तरफ अट्रैक्ट होता है, बिल्कुल, हर मूविंग चीज की तरफ अट्रैक्ट होता है। वो स्क्रीन पे इतने कैरेक्टर्स मूव कर रहे हैं, वो उसको अट्रैक्ट करता ही है। सो बच्चे का अट्रैक्ट होना इज अ वेरी नेचुरल टेंडेंसी। अब आपने पूछा क्या माँ बाप की वजह से बच्चों की टेंडेंसी डेवलप ज्यादा हो रही है? मैंने बहुत पेरेंट्स को देखा है, घर पे ही नहीं, जब वो घर के बाहर भी होते हैं, फंक्शंस में हो, शॉपिंग के हो, हॉस्पिटल तक में हो, तो बच्चे को चाहते एक जगह बैठा रहे। हाँ जी। और कोई तरीका ही नहीं सोचता हूँ, बेटा ले कार्टून देख लो फोन। वो बच्चा टिक टिकी लगाए बैठा, हिलता ही नहीं, उसको पता ही नहीं मेरी माँ क्या कर रही है, पापा कहाँ है, उसको कुछ नहीं पता। वो सिर्फ लगा हुआ है गैजेट में, वो गैजेट जो उसको घर में नहीं दिया जाता आराम से, अब उसको बाहर दिया गया। तो वो बाहर आपके साथ क्यों जाना चाह रहा है? क्योंकि उसे पता है बाहर जाऊंगा तो गैजेट मिलेगा। घर में आपको याद आता था टू मच ऑफ स्क्रीन टाइम, आंखें खराब हो जाएंगी, बिगड़ जाएगा, आदत खराब हो जाएगी। आदत तो आप डाल ही रहे हैं। मेरे माँ बाप को जब मुझसे बात नहीं करनी होती तो वो गैजेट मुझे पकड़ा देते। आप कहते हैं और बेटा गप्पे मारे स्कूल में, क्या हुआ? मेरा मन नहीं है, क्योंकि वो चाह रहा है कि आप कहें कि अब तू खुद बिजी रहे, मैं अपना काम करूँ, गैजेट पकड़ा दो। अगर उसकी जगह हम बाहर शॉपिंग करते करते भी बच्चे से बात करें, या उसकी भी पूछ ले पसंद, ये खरीदना चाहे, अच्छा लग रहा है। आई स्टिल रिमेंबर मेरे बच्चा हमेशा कारपेट का कलर, पर्दों का कलर उसकी पसंद से आते थे, हमें क्या फर्क पड़ता है? बिल्कुल। लेकिन आजकल ये भी है कि मैम इट्स नॉट ओनली अबाउट कार्टून्स, जो ये स्क्रॉलिंग सबसे बड़ी चीज जो प्रॉब्लम है गेमिंग। हाँ जी। आपके बच्चे अगर छोटे हैं तो आप किस्मत वाले हैं अभी, पर जब से 3rd 4th में आएंगे उनको धीरे धीरे दोस्तों से पता चलेगा कि गेमिंग कितनी एक्साइटमेंट है, सच बिग एड्रेनालिन रश। वो एड्रेनालिन रश जो हम सबको खेलते हुए मिलता था, एक्चुअल गेम्स, क्रिकेट, फुटबॉल, रनिंग, व्हाटएवर गेम्स वी प्लेड विद द फ्रेंड्स, चाहे हम आइस स्पाइसी क्यों ना खेल रहे हो, या लंबी टांग खेल रहे हैं, या हम स्टापू खेल रहे थे मेरी उम्र में, वो इनको एड्रेनालिन रश मिलता है जो ऑनलाइन गेमिंग, चाहे वो कंप्यूटर पे हो रही है, चाहे टैबलेट पे, चाहे फोन पे। और हर बच्चे को पता है गेमिंग का पॉइंट कहाँ पर है इसमें। आई वॉज वॉचिंग अ क्रिकेट मैच, फाइनल देख रही हूँ मैं, and suddenly my grandchild who's just 4 years old saw something which is flashing. He just put his finger on that और एक suddenly game खुल गया क्रिकेट का in between India and New Zealand, and he said I am not going to be Indian girl with this country, and दादी you become this, and वो कुछ नहीं है, वो balls आ रही हैं और वो बंदे का, so if you click you hit or miss. I didn't know while watching sometimes these क्रिकेट की जो छोटी सी स्निपेट्स आती हैं, या कमेंट्री आ रही है, या व्हाट यू से जो फोन में आती है आपके, आई एम नॉट वाचिंग अ वीडियो बिकॉज़ आई डोंट वांट माय चिल्ड्रन टू और माय ग्रैंडचिल्ड्रन गेट डिस्ट्रैक्टेड, बट ही कुड सी दिस वाज अ फ्लैशिंग लाइट व्हिच आई नेवर बॉदर्ड टू इवन ओपन एंड चेक, बट ही न्यू व्हाट दीस लाइट्स मीन, इट मींस देयर इज समथिंग एक्साइटिंग। और वो हमारे साथ नहीं रहता, हम कंट्री में गए हुए हैं जहाँ पर हॉटस्टार पे मैच नहीं आ रहा, तो फोन पे मैं अलर्ट्स देख रही हूँ। And now every day he'll ask me, can we play that match again? Can we play that game again?
whenever it see me on my phone, and चूंकि मैं स्कूल से दूर थी तो सारा काम फोन पे हो रहा है, और वो बीच बीच में आके, एंड उस घर में मेरे बेटे ने बहुत कोशिश की कि उसको गैजेट से दूर रखें बच्चों को, लेकिन उनको पता है डिनर खत्म होते ही they'll get 15 minutes of cartoon time. Okay, so that's a systematic way of doing things. हाँ, सो अगर हम बच्चों को शुरू से ही राशन या टाइम टेबल के हिसाब से चीजें दें जो हमें लगता है कि उनको डिस्ट्रैक्ट करेंगे रियलिटी से, इट इज ऑल मेड बिलीव रियलिटी व्हाट दे वांट इन कार्टून्स. आप ध्यान से देखिए कोई भी कार्टून कैरेक्टर, जैसे एक शॉन द शीप करके एक आता है कार्टून, तो आप देखिए उसमें एनिमल्स कैसे बिहेव कर रहे हैं विद द ओनर. वो ओनर को हर तरह से परेशान कर रहे हैं, चाहे वो एनिमल है, आपके बच्चे नहीं है, ना ही ह्यूमन इंटरेक्शन है, लेकिन उस कार्टून से बच्चा क्या सीख रहा है? ओनर्स आर बैड, इनका मजाक उड़ाना चाहिए, इनको परेशान करना चाहिए, तभी हंसी आती है हमको. जब हम किसी को परेशान करते हैं तो सारी दुनिया हंसती है. क्लास में जाके वो बच्चा टीचर को परेशान करता है, उसके दोस्त हंसते हैं, ही गेट्स वैलिडेशन कि वही चीज समाज में पसंद आती है जिसमें हम किसी को हंसा सके. तो वो हंसाने के लिए धीरे धीरे बदतमीजी करना शुरू कर देते हैं. बच्चे बुरे क्यों बनते हैं? समाज बनाता है, माँ बाप बनाते हैं, फ्रेंड्स बनाते हैं, इग्नोरेंट टीचर्स बनाते हैं, इग्नोरेंट पेरेंट्स बनाते हैं. कोई बच्चा माँ के पेट से नहीं बदतमीजी या बेहूदगी सीख कर आता. हाँ जी, इट्स एटमॉस्फेयर. मैम, आज के फास्ट पेस्ड वर्ल्ड में स्टूडेंट्स को एकेडमिक एक्सीलेंस के साथ साथ और क्या स्किल्स जरूरी है जो उसे आनी चाहिए? अब मेरा पॉडकास्ट क्यों ले रहे? मैम, बिकॉज ऑफ योर एक्सपीरियंस, नो, जो इतने साल का आपका No. एक्सपीरियंस है. बहुत सारे प्रिंसिपल्स का आप नहीं ले रहे हैं, क्यों? You're good, I would say कि आपके पास जो नॉलेज है और आप जिस तरह से बता सकते हैं, एक्सप्लेन जिस करते हैं, तरह से बता सकते हैं, हाँ जो जी. मेरा थॉट प्रोसेस है, Yes. क्या मैं उसको एक्सप्रेस कर सकती हूँ? Yes. क्या मैं आपका थॉट प्रोसेस समझ के, या मेरे वक्ताओं को या सुनने वालों को, श्रोताओं को क्या चाहिए उसका भी ध्यान रखते हुए मैं उतने समय में क्या अपनी बात कह पा रही हूँ? बिल्कुल. तो इस वजह से आप मेरा ले रहे हैं. ये लाइफ स्किल है, ये मेरी हाँ जी. किताबों में नहीं लिखा. हाँ जी. ये नॉलेज, ये लाइफ स्किल मेरी टीचर्स, हाँ जी. मेरे पेरेंट्स हाँ. और जो समाज से मैं सीख रही हूँ, हाँ. उन्होंने सिखाई. हाँ. दूसरे में क्या चाहिए, अगर मैं वही देखना शुरू कर दूं और उसको ग्रहण करने की कोशिश करूं तो मैं हर रोज बेहतर होती जाऊंगी. बिल्कुल. और ऐसे भी लोग मिलेंगे जिनके अंदर मुझे कुछ व्यवहार में कमी दिखेगी, तो क्या मैं उसको भी आत्मसात कर लूं? नहीं, ऐसा नहीं बनना मुझे. सो आई लर्न फ्रॉम बोथ काइंड ऑफ पीपल. इनके जैसा बनूं या ये वाली चीज ना करूं. ये इंसान मुझे बहुत पसंद है, लेकिन इनकी ये बात पसंद नहीं है, पर इसका मतलब ये इंसान बुरा है. सो आई लर्न टू डिफरेंशिएट बिटवीन व्हाट इज डिजायरेबल, व्हाट इज नॉट डिजायरेबल. क्या सही है, क्या गलत है. अगर इसका एहसास हम बचपन से ही, बच्चे अपने आप से ही, हमारी वजह से, हम रोल मॉडल्स हैं. हाँ जी. बच्चे के अंदर हम सही गलत का एहसास करते हैं क्योंकि हम सही तरीके से बोलते हैं. ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा जरूर करना चाहिए. ये देखो कितना अच्छा कर रहे हैं. पर ये नहीं कि हम अपने बच्चे को कंपेयर कर रहे हैं या खुद को कंपेयर कर रहे हैं, हम दूसरे की अच्छाई से सीख रहे हैं. आई थिंक दैट इज द बेस्ट थिंग. हर इंसान में सबसे पहले अच्छाई देखो. इसलिए हमारे स्कूल में एक नियम है कि आप गुड मॉर्निंग नहीं बोलते, आप नमस्कार बोलते हैं. नमः. नमः एक संस्कृत का शब्द है, एक धातु है जिसका मतलब होता है झुकना. मैं सामने वाले के आगे नमः, मैं आपका आदर करती हूँ, आपके आगे झुकती हूँ. क्यों कह रही हूँ? झुकेंगे तो आप उसी के सामने ना, जो आदर के पात्र हो, जिसके अंदर कोई अच्छाई हो. सामने वाला मुझे कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है? वो भी हाथ जोड़ के रिस्पॉन्ड कर रहे हैं. दोनों हाथ जोड़े तो बहुत सारे चक्र मिल गए, वो तो है ही बात अच्छी. पर जो सबसे अच्छी बात है कि वो मेरी अच्छाई देख रहे हैं, मैं उनकी अच्छाई देख रही हूँ, तो हमारा इंटरेक्शन कितना पॉजिटिव होगा. हम एक दूसरे से ग्रहण करने के लिए तैयार है अच्छाई. पर सामने वाले 20 चीजें उसकी गलत लगे तो चेहरे, आप मुंह पर कितनी भी मुस्कान ले आइए, आपके चेहरे के दिल के भाव सामने वाले तक पहुंच जाते हैं, दिख जाते. जब आपके भाव कोमल होते हैं, साफ होते हैं और दूसरे के लिए आदरपूर्ण होते हैं, रिलेशनशिप्स आर सो ब्यूटीफुल. और यही कमी है आज की दुनिया में, लोग दूसरे को ट्रस्ट नहीं कर रहे. तो बोल भी देना, यू वेरी नाइस, क्या काम है भाई बता दो, दिख जाता है. मैम, आज एजुकेशन रैपिडली इवॉल्व हो रहा है. एआई, हाइब्रिड लर्निंग, स्किल बेस्ड एजुकेशन का जमाना है. इस चेंज को लेकर आपका क्या कहना है? आई थिंक इट्स वेरी पॉजिटिव चेंज. वेरी वेरी पॉजिटिव. कोविड हुआ, स्कूल बंद हो गए, दुनिया बंद हो गई, लेकिन एक चीज चालू रही, वो थी पढ़ाई, एजुकेशन. यस. घरों में पहुंच गई वो पढ़ाई. बच्चे को बाहर निकालना सेफ नहीं है. हाँ जी. पर पढ़ाई नहीं रुकी, और वो पढ़ाई नहीं रुकी तो पोस्ट कोविड के बाद जो झटके लगने थे वो नहीं लगे.
things came back to normal. Not only padhai, even the offices, everything continued. It's because of the technology. Yes. और फिर जिन लोगों ने टेक्नोलॉजी को अपनाया नहीं था, उन्होंने कोशिश करके सीखा. तो with the result, now you have a person who may not have gone to school, लेकिन उसको अपने मोबाइल पे बैंकिंग करनी आती है, उसको यूपीआई का ट्रांसफर करना आता है, लोगों को अपना पैसा खुद समझना आ गया. नहीं तो पहले क्या होता था, घर में अगर कोई मेड काम कर रही है, सर ये मेरे पैसे रख लो, जब मैं गाँव जाऊंगी तो दे देना. अब ईमानदार मालिक है तो पूरा पैसा दे दिया, बेईमान है तो गड़बड़ भी कर सकता है, या किसी के पास रखवा दिया और उससे सारा पैसा गबन कर दिया. अब उनको बैंकिंग आ गई, उनको बैंक को बगैर पैसा ट्रैवल करने की आदत आ गई. सो मनी सेफर, इट्स आल्सो अर्निंग इंटरेस्ट. और या फिर जैसे आपने कहा रियल एस्टेट में लगाने की भी अक्ल आ गई, और आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं कौन सा प्रोजेक्ट मेरे लायक होगा, इसका फ्यूचर क्या है, इसके बिल्डर्स कौन है, इसके डेवलपर्स कौन क्या है. फिर आप कंपेयर रेट कर सकते हैं. और पढ़ाई में तो आई थिंक इट इज रिवोल्यूशनाइज्ड. पढ़ाई क्या, मेडिकल फील्ड में आप देखिए आजकल रोबोटिक सर्जरी आ गई है. हाँ जी. जो काफी लोग पसंद भी करते हैं, काफी लोग नहीं भी करते हैं. पर अगर कोई डॉक्टर नया होता है तो उसके लिए हम कहते हैं रोबोटिक सर्जरी अच्छी है. कि बहुत पुराना एक्सपीरियंस डॉक्टर है तो हम कहते हैं रोबोटिक नहीं करानी उससे. एक तो पता नहीं इसको एआई कितनी यूज करनी आती है. नंबर 1 इसका खुद का ही हाथ रोबोट से भी ज्यादा अच्छा बना हुआ है. जब बॉडी खुलेगी तो ये उस समय पहचान पाएगा कि क्या कमी है और उसके हिसाब से चेंज कर देगा अपनी सर्जरी. रोबोट को दूर से स्क्रीन से देखकर तो वो बात नहीं होती जो आंख से देखकर होती है. सो इट हैज प्लस माइनस, लेकिन कई बार इसका नुकसान भी बहुत हुआ है. तो हमें इसको अडॉप्ट करना है, मना नहीं करना, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ ह्यूमन रिलेशंस. यस, एब्सोल्युटली. तो ट्रेडिशनल क्लासरूम एजुकेशन फ्यूचर में भी सर्वाइव करेगा, या स्किल बेस्ड लर्निंग का जमाना आ रहा है या आने वाला है? ऐसा नहीं मुझे लगता कि स्कूल्स बंद होंगे. 2 कारण. इट इज नॉट ओनली अबाउट गेनिंग नॉलेज. वो नॉलेज तो आपको एआई रिलेटेड टूल से मिल जाएगी, स्किल्स भी मिल जाएंगी, कुछ स्किल्स मिल जाएंगी, लेकिन ह्यूमन इंटरेक्शन कहाँ मिलेगा. वैसे ही फैमिलीज न्यूक्लियर होती चली जा रही हैं. न्यूक्लियर होने के साथ साथ एक बच्चे वाली फैमिली बहुत सारी हो गई है. 1 चाइल्ड 2 चाइल्ड मैक्सिमम. दादा दादी जरूरी नहीं है साथ रह रहे हैं, क्योंकि न्यूक्लियर है. नाना नानी का भी नहीं पता कहाँ रहते हैं. और माँ बाप जो है अपने सिबलिंग से दूर होते चले जा रहे हैं, पोस्टिंग्स की वजह से, या फिर वो पैसे की होड़ में कि टाइम ही नहीं है हमारे पास किसी से बात करने का. तो ये बच्चा जब तक स्कूल नहीं आएगा, आगे जाके उसके पास कोई भी नहीं होगा जिसको वो कह सके कि मैं जब बोर हो रहा हूँ या परेशान हो तो उसको अपने सुख दुख बांट सकूं. अभी दोस्त भी बनेंगे और वो जिंदगी भर साथ भी देंगे. टीचर्स से भी जुड़ाव होगा. टीचर्स उन्हें ये भी सिखाएंगे अपने दादी को पत्र लिखो, नानी को पत्र लिखो, तो वो उनके साथ भी जुड़ेंगे जो शायद माँ बाप भूल जाते हैं बताना. हम स्कूल में बहुत ध्यान रखते हैं इस बात का कि बच्चों को कैसे ग्रैंड पेरेंट्स के नजदीक लाएं. हाँ जी, ग्रैंड पेरेंट डे. जी, ग्रैंड पेरेंट्स डे मनाने के अलावा इंग्लिश हिंदी में एक पत्र लिखवाने का भी काम करते हैं, जो खत्म हो रही है वो लिखने. और हम कहते हैं पोस्ट करो अपने दादा को दादी को. मैम, आज का स्टूडेंट कैसे प्रिपेयर करे फ्यूचर की अननोन जॉब्स के लिए, क्योंकि देयर आर सो मेनी अनकन्वेंशनल जॉब्स राइट नाउ. योर क्वेश्चन शुड बी डायरेक्टेड टू अ हायर एजुकेशन प्रिंसिपल. स्कूल वाले तो सिर्फ लाइफ स्किल्स देते रहे, उनको बेसिक स्किल्स देते रहे, उनको एक्सपीरियंशियल लर्निंग बताएं, उनको कोलैबोरेटिव लर्निंग का एक्सपीरियंस कराएं, उनको टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के बारे में तैयार रखें. अब न्यू जॉब्स, आई डोंट थिंक स्कूलिंग में 10th तक आप जॉब के लिए नहीं पढ़ते हैं. यस, यू लर्निंग फॉर द सेक ऑफ लर्निंग. बाद में क्या होगा किसी को, और ना ही उस समय चिंता करने की जरूरत है. अब सारे सब्जेक्ट्स उतने ही मन से पढ़ी. सपोजिंग मैंने अपने बच्चे के मन में डाल दिया, बेटा तुझे आगे जाकर इंजीनियर बनना है. वो कहेगा मैं सोशल साइंस क्यों पढूं, मैं हिंदी क्यों पढूं, मैं संस्कृत क्यों पढूं, मैं कोई और लैंग्वेज क्यों पढूं, मैं तो बायोलॉजी भी नहीं पढ़ूंगा साइंस में क्योंकि मेरी माँ ने बोला मुझे पीसीएम इंपॉर्टेंट है. तो क्या हुआ, वो ये बच्चे की बहुत सारी कॉमन सेंस खत्म हो जाएगी. जो आप हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी से सीखते हैं, या भाषाओं की पकड़ से सीखते हैं, या फिर आप खेल कूद और प्रोग्राम पे रुचि देकर और काम करके सीखते हैं, ये बच्चा सिर्फ एक मशीन बन जाएगा. फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में बेस्ट हो जाए, टेंशन में रहेगा हमेशा. वोंट बी एनी जॉय इन हिज लाइफ. तो 10वीं तक बिल्कुल मत चिंता करिए, ना पेरेंट्स चिंता करिए, ना बच्चों के मन में डालें. सिर्फ हर सब्जेक्ट को उतने ही मन से पढ़े. जब 10वीं में आ जाए बच्चा शुरू में ही, तो एक एप्टीट्यूड टेस्टिंग होती है जिससे पता चलता है बच्चे का रुझान किस फील्ड में ज्यादा है. अगर वो एप्टीट्यूड टेस्ट करवाना है पैसे खर्च करके तो कराइए, नहीं तो आपको खुद समझ में आ जाएगा अपने बच्चे से बात करके.
और नहीं तो अपने बच्चे की टीचर से बात करिए, स्कूल के काउंसलर से बात करिए। कोई जरूरी नहीं है कि महंगे महंगे खर्च करें। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप एप्टीट्यूड टेस्ट करा भी सकते हैं, लेकिन उससे पहले जरूरी है अपने बच्चे के मन में चाह करना। There's so many people who became doctors but left it क्योंकि मन नहीं था। पलाश सेन म्यूजिशियन बने, माँ बाप ने कितनी मेहनत करके डॉक्टर बनाया होगा। हाँ जी। हर्षा भोगले इंजीनियर हैं, लेकिन क्या बने? क्रिकेट कमेंटेटर। अनिल कुंबले इंजीनियर, श्रीनाथ इंजीनियर, लेकिन छोड़ के क्रिकेट में घुस गए। उस समय अगर अपने स्कूल में बोलते तो थप्पड़ लगते होंगे। हाँ जी, बिल्कुल। मैम, आपके स्कूल में फ्यूचर रेडी एजुकेशन के लिए क्या इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं? हमारे स्कूल में यस, सभी स्कूलों के लिए सीबीएसई कोशिश कर रहा है कि स्किल बेस्ड सब्जेक्ट्स ज्यादा डाले जाए। ओके। 9th ऑनवर्ड, 9th तो छोड़िए, मेरे स्कूल में 6, 7, 8 में फाइनेंशियल लिटरेसी की किताबें लगाई ओके। जो मुझे किसी ने नहीं सिखाई थी जब तक मैं 11वीं भी कर ली थी। 11वीं छोड़ी ना, बीएससी में सिखाई ना एमएससी में सिखाई, ये मैंने अपने हस्बैंड से सीखा। What are mutual funds? What are shares? What are debentures? How is money invested? What is SIP? और बहुत सारे लोग अपने हस्बैंड सीखते, लेडीज। लड़कों को कुछ पैसे में ज्यादा रुझान होता है तो वो जल्दी ध्यान देने लगते हैं, सब पूछने लगते हैं। अब लेडीज भी करने लगी। तो हम नहीं चाहते थे कि ये जनरेशन भी हमारी जैसे बड़ी हो और देर से समझ में आए इनको पैसा कैसे इन्वेस्ट किया जाता है। मेरे हिसाब से बैंक, ईपीएफ, पीपीएफ, बस दिस इज द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट। थोड़ी सी और समझ आई तो रियल एस्टेट इज अ गुड इन्वेस्टमेंट। किसी ने बोला गोल्ड इज अ गुड इन्वेस्टमेंट, व्हिच आई रियलाइज वाज नॉट लेटर ऑन, unless you're buying SGB, sovereign gold bonds, which have now been closed. But having financial literacy is very important. This child will learn how to respect money. Yes. नहीं पैसा आते ही उड़ाने लग जाएंगे। This child will also know that money can be multiplied. And this child will also know how can you raise money. जिससे इस बच्चे के मन में ये भावना आएगी कि मैं अपना पैसा कमाना शुरू करूं, ये छोटी सी उम्र में इंटर्नशिप शुरू कर देंगे। बिल्कुल। जॉब इंटर्नशिप्स छोटी छोटी, चाहे वो 10 दिन की हो, हफ्ते भर की हो, 2 दिन की क्यों ना हो। जब ये जाके किसी के साथ इंटर्नशिप करेंगे तो ये उसके बारे में, मैंने जितनी भी किचन का काम सीखा है सिर्फ ऑब्जर्वेशन से सीखा है। मेरी माँ ने मुझे पकड़ के कोई क्लास नहीं दी कि ऐसे रोटी बनाते हैं, सिर्फ देख कर दादी, नानी, मम्मी को। ऐसे ही बहुत सारे काम जब आप इंटर्नशिप करते हैं तो औरों को करते देखकर आप सीखते हैं, फिर आपको समझ में आता है ये काम मेरे लायक है या नहीं। सो लेट योर चाइल्ड डू समर इंटर्नशिप्स फ्रॉम व्हिचएवर एज इज पॉसिबल। अपने रिश्तेदारों के बिजनेस में या अपने जान पहचान वालों के सेफ बिजनेसेस में भेजिए। बच्चा छुट्टियां भी अच्छे इस्तेमाल करेगा। मेरे को ध्यान है, मैं अपने 11th के बच्चों को डिफरेंट हॉस्पिटल्स के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में भेजती थी। मेडिसिन जिन बच्चों को जाना है आगे, ताकि आगे जाके कौन सी स्पेशलाइजेशन मिले। देन एक्सपीरियंस ए गायनेकोलॉजिस्ट लाइफ, देन एक्सपीरियंस एन ऑप्टोमेट्रिस्ट लाइफ, देन एक्सपीरियंस न्यूरोलॉजिस्ट लाइफ। पता चले उनको ये नहीं पता एमडी करनी किसमें। हाँ जी, ग्रेट। मैम, टॉकिंग अबाउट रियल एस्टेट, क्या आपने इन्वेस्टमेंट किया है रियल एस्टेट में? और अगर हाँ, तो आपने क्या-क्या बेसिक चीजों का ध्यान मेरी रखा? फैमिली में ना, मेरे काफी लोग बोलते हैं कि ये सबसे पहले तैयार होती है उनको कोई नया प्रोजेक्ट मिले तो। अच्छा। तो कि इसमें इन्वेस्ट करते हैं। और मेरे हस्बैंड से व्हाई डू वी नीड, वी हैव वन हाउस, वी हैव वन प्रॉपर्टी, अनदर प्रॉपर्टी, 2 से ज्यादा क्या करेंगे। नो, वी कीपिंग मनी इन बैंक्स, देयर इज नो हार्म इन investing. A lot of people said this house used to be 3 crores and now it is 8 crores. This used to be 6 crores and now 17 crores. और it was just 1 crore का घर था और इतना, क्योंकि ये जमीन हमने सिर्फ 18,000 की दी थी, आज की इतने की हो गई। हाँ जी। तो काफी लोगों की ऐसी कहानियां सुन के समझ में आया। तो रियल एस्टेट के लिए आपको सबसे पहले तो, I mean, I'm not an expert, please don't ask me, I'm an educationist. But मैं यही चाहूंगी, मेरी कुछ इन्वेस्टमेंट वाइज रही हैं, कुछ नहीं रही वाइज। हाँ, वही मैं जानता हूँ। वाइज जो नहीं रही वो सिर्फ इस वजह से नहीं क्योंकि मैंने उनको टाइम से पहले निकाल दिया। ओके। जैसे ही हमने गुड़गांव की जमीन को निकाला, 6 महीने बाद उसके रेट 4 टाइम्स हो गए। ओके। तो टाइमिंग इज इम्पोर्टेंट। देन मूव टू द रैपिड फायर राउंड। मैम, एक ऐसी बुक जो हर पेरेंट को पढ़नी चाहिए? एज आई सेड, प्रॉफिट। ओके, ग्रेट। एक लाइफ लेसन जो आप हमेशा अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करते हैं? You chase your dreams. Your dreams define you. If you have dreams, you will be able to manifest them. एक चीज जो दूसरी इसके बाद ऐड करती हूँ, one dream fulfilled, attained. Please start dreaming the next one. ये जिंदगी में 15-20 ड्रीम नहीं तुमने पूरे किए तो क्यों आए हो बालक? ग्रेट। अगर आप एजुकेशनिस्ट ना होते तो क्या होते? मैं बहुत कुछ हो सकती थी। I could have been a very good banker. I could have been an amazing doctor. I could have been a very good counselor. I could have been a better person, which I think I'm becoming every day.
I could have been an engineer, I could have been a pilot, I could have been astronaut, I could have been anything that I wanted. तो 15-20 ड्रीम्स मैम। ग्रेट। एक हैबिट जो स्टूडेंट्स को डिसिप्लिन बनने में मदद करेगी। लगन, sincerity, honesty. आपका फेवरेट कोट एजुकेशन पर? You are, अच्छा पहला तो मैं दूसरा कोट बताऊंगी जो जीवन में है। You are tied to the end of your own chain. आप अपने ऊपर खुद बंधन लगा सकते हैं, कोई और नहीं लगा सकता। तो आपको किस तरह का व्यवहार करना है लाइफ में, कितनी फ्रीडम लेनी है समाज से या माँ बाप से या अपने जान पहचान वालों से, वो आपको पता है। ज्यादा लोगे तो मुंह के बल गिरोगे। सो अपनी चेन से आगे मत निकलो। आपके परिवार की कुछ सीमाएं हैं, उनको लांघो मत, मतलब बिहेवियर की, नॉट बिकॉज ऑफ एम्बिशन। एम्बिशन अपने परिवार की सीमाओं से लांघ सकते हो, लेकिन कंडक्ट और जो आप व्यवहार करते हैं, जैसे कई बच्चों को लगता है मैं ये वाली गलती तो कर ही लूँ इस लाइफ टाइम में, एक बार खूब सारी शराब पी लूँ, ड्रग्स ले लूँ। नहीं, अगर आपको लगता है आपके परिवार के अंदर ऐसा नहीं होता या करते हैं तो मुझे नहीं करना, आपने अपनी चेन खुद निर्धारित की कि इससे ज्यादा नहीं, मुझे गाली नहीं देनी तो नहीं देनी, मुझे शादी से पहले रिलेशनशिप नहीं बनाने तो नहीं बनाने। आई बिलीव इन द सिस्टम कॉल्ड मैरिज। तो वो आप यू आर इन द यू टाई टू द एंड ऑफ योर चेन। मेरी कुछ बातें कुछ लोगों को नहीं समझ में आएंगी, लेकिन जब भी कुछ आए आप अपने आप को रोक ले। आपके दोस्त कुछ भी कहें करने को बच्चों, आपको अपने आप को रोक लेना है, क्योंकि ये आपकी चेन से बाहर जाता है। अब रहा एजुकेशन, इसी से रिलेटेड है। तो फिर जब आप पढ़ने बैठ रहे हैं तो आपको पता है आपको पढ़ना ही है रोज, या खुद रिवाइज करके फिर क्लास में जाना है। प्रिपेयर एंड गो एंड डिस्कस इन क्लास। यू आर योर ओन टीचर। यस मैम। एक लाइफ मंत्रा दैट यू फॉलो फॉर हैप्पी एंड सक्सेसफुल लाइफ? रिस्पेक्ट अदर्स। दैट्स मीनिंगफुल। मैम, दिस इज ट्रूली इंस्पायरिंग। बहुत कुछ आज वैल्यूएबल सीखा हमने, पेरेंटिंग टिप्स के बारे में, एजुकेशन ट्रेंड्स के बारे में। नाउ इट्स टाइम टू थैंक्स मैम। मैम, कोई फाइनल मैसेज अगर हमारे व्यूअर्स को देना चाहें तो? मोर देन द मैसेज, इन केस मेरी कोई बात आपको सही ना लगी हो, क्योंकि आपके जीवन का निचोड़ अलग है, आपका एक्सपीरियंस अलग है, सो बी इट। आपको जो अच्छा लगा उसको अपनाइए, जो अच्छा नहीं लगा उसको छोड़ दीजिए। और सबसे बड़ी बात जो मैं सिखाना चाहती हूँ मेरे नए पेरेंट्स को और बच्चों को, कि आप, बुद्धा ने एक चीज कही थी, स्टिमुलस का रिएक्शन ना दें, स्टिमुलस का रिस्पॉन्स दें। सो देयर इज अ टाइम गैप बिटवीन अ स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। उस पॉज को जितना बड़ा कर दें उतना अच्छा। मतलब सोच समझ के काम करें, सोच समझ के ही जवाब दें। अगर आपको इंस्टेंटली रिएक्ट करने की आदत है तो थोड़ा सा रुक जाएं, 3 ही गिन ले जाएं और फिर बोले, तो आपके सारे रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे रहेंगे। जैसे किसी ने मुझे धक्का दिया और मैंने पूछा भी नहीं कैसे लगा, मैंने सामने वाले जानबूझ के दिया, पलट के दिया। या किसी ने कुछ अपशब्द किसी और के लिए बोला, मुझे लगा मुझे बोला, मैंने भी पलट के गाली दी और हमारा लड़ाई हो गई। तो जब हम किसी चीज को सोच के कोई भी रिएक्शन देते हैं तो वो रिस्पॉन्स कहलाता है। अगर हम इमीडिएट बगैर सोचे समझे करते हैं तो वो रिएक्शन है। सो प्लीज स्टार्ट रिस्पॉन्डिंग, नॉट रिएक्टिंग। थैंक यू सो मच। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू मैम। सो दिस इज ट्रूली इंस्पायरिंग। आप SVIS का पेज फॉलो कर सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर है। मिलेंगे बहुत जल्दी अपने नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू, टेक केयर, बाय।